My voice is audible. Can you write in chat box? Okay, now it is audible. Okay. So good afternoon. In our last lecture, we have started applications of differentiation topic, right? In that, we have seen first three applications of derivative. First, it was how to find the equation of tangent and normal if the equation of slope is given, right? Slope अगर दिया है f of x और y is equals to something 3x square plus log x, तो आपको dy by dx अगर आप निकाला तो आपको मिल जाएगा slope of tangent. At given particular point, you can easily find out its slope. Slope of tangent at particular point अगर आपने निकाला तो वो पॉइंट तो आपको पता है y minus y1 is equals to m into x minus x1. ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में रखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में डिफरेंस क्या है, mt into mn is equals to -1. So this thing we have done and we have taken few questions based upon this part which was asked in previous year question paper. उसके बाद हमने लिया है उसी चैप्टर में से डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज. डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज, इसमें हमने अगर रेडियस स्फीयर का इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें क्या क्या रिलेशन है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन. उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने 5-6 एग्जांपल लिए उस टाइप से. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस approximation, application of derivatives approximation, how to find, suppose that cube root 27 you can easily find out, but what is cube root of 28, 29? This thing you have to use formula f of a plus h is equals to f of a plus or plus h into f dash of a. Okay, so approximation, this part was related, right? One student has written, sir, approximation is related. For this means for your batch from board it was related, and for CET also they are not going to ask any question related with approximation. So only 2 or 3 questions I have taken at the last of previous lecture. Okay, so now today we are going to discuss the remaining applications of derivatives. First we will discuss what is increasing and decreasing function. After that, what is maxima and minima function, and last, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. So these are the points are pending from this topic. So we'll discuss one by one. Now देखो, फंक्शन का आप कोई भी फंक्शन होगा तो आप उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर 2D में है तो उसका ग्राफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप, राइट? सो मुझे बताइए, कुछ कुछ फंक्शन का ग्राफ ऐसा आएगा, कुछ का ये स्मूथ आएगा, कुछ फंक्शन का इस टाइप का आएगा, कुछ फंक्शन का इस टाइप का आएगा. सो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है. फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है. देखो, अगर फंक्शन f डैश ऑफ x उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे है, मींस वो इंक्रीज हो रहा है, बीच बीच में डेरिवेटिव 0 भी हो रहा है, मींस यहां पर इसका टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस भी हो रहा है. So that function is increasing. देखो, this function is increasing. Understood? This is also increasing. But इसमें और इस increasing में क्या फर्क है? देखो, ये है strictly increasing. Strictly increasing means ये देखो is equals to 0 नहीं है यहाँ पर. Okay? So f dash of x is greater than or equals to 0 होगा तो increasing. F dash of x is greater than equals to 0 होगा तो strictly increasing. Similarly, f dash of x is less than or equals to 0 अगर होगा तो decreasing, and f dash of x अगर less than 0 होगा तो strictly decreasing. So यहां से यहां तक इंटरवल में देखो b और a है ना, अगर b छोटा है a से and f of b is greater than f of a, then this function is increasing. Here you can see from the graph, here it is constant function, so derivative is 0, and here it is decreasing function, so derivative is negative. It means f dash of x
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग, f dash of x less than equal to 0 है तो decreasing. Okay, understood? So we have to solve questions based upon this. If you understood, write in a chat box. Sir, is this the first slide? Yeah, this is the first slide. And because yesterday I saw a video recording, so I come to know that whatever I am writing here, it is not visible if I am using red pen. So I'll write on this page by using black pen. Okay. Next. Now one by one you have to solve question. In last lecture, we have solved 13 MCQs. Now from here we will solve. देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इंटरवल. कौन सा इंटरवल? देखो पहले तो हमने देखा था, सपोज दैट ये ऐसा फंक्शन है, राइट? तो यहां से लेके, सॉरी, अगर ये फंक्शन ऐसा है तो यहां से लेके यहां पर कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये इंटरवल कौन सा है जहां पर इंक्रीज हो रहा है और कौन सा इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो फंक्शन दिया है f of x is equals to 2x square plus 3. I think it is visible. Determine the interval of increasing and decreasing of this function 2x square plus 3. तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी दिया है. फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग इंटरवल, सेकंड वाला डिक्रीजिंग. So try to solve this question, first one. If you know the answer, you can write in a chat box. D. Student, they are writing option D. Okay. See, let's see. For this first question, now what is function given? F of x is given 2x square plus 3. What will be its derivative? It will be 4x. मुझे बताए फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, राइट? सो 4x ग्रेटर देन 0. तो मुझे बताइए, तो x का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? मींस x क्या होगा? ग्रेटर देन 0. x ग्रेटर देन 0 मींस 0 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है. और डिक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट? सो 4x लेस देन इक्वल्स टू 0. सो x इज लेस देन 0. तो वो इंटरवल होगा माइनस इंफिनिटी टू 0. ओके, तो पहला इंक्रीजिंग है एंड दूसरा डिक्रीजिंग है. तो पहला इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ऑप्शन में डी ही है. ओके, एंड सेकंड माइनस इंफिनिटी टू 0. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ ट्राई टू सॉल्व सेकंड. सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन.
Yes, write down the answer. Write in a chat box. ये समझ में आ गया? फर्स्ट वाला समझ में आ गया आपको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला 4x, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, सो 0 टू इंफिनिटी, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, सो माइनस इंफिनिटी टू 0, सो द ऑप्शन वाज डी। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये फंक्शन दिया है, डिटरमाइन द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर दिस फंक्शन रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। देखो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, वेट, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1, फिर से इसका 1 बाय 2 रूट एक्स, राइट। सो सॉल्व करो, माइनस 1 2x रूट एक्स, okay. Now if you want to make denominator common, then multiply this first by x, so x minus 1 2x root x, so this is f dash of x, okay. So f dash of x is this, so minus it will be, so minus minus will be plus. मुझे बताइए ये आंसर पॉजिटिव कब देता है, फॉर व्हाट वैल्यू दिस आंसर इज गिविंग पॉजिटिव आंसर, सो f dash of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे तब, राइट। सो इफ विल कंपेयर numerator and denominator at 0 greater than 0, then you will get the answer. So for all positive integers this answer is positive, so for all positive integers this answer is positive, it means derivative is greater than 0, so increasing के लिए all positive means 0 to infinity, तो आपके ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट में 0 to infinity तो यही दिया है, ओके। नेक्स्ट solve question number 16, try to solve this 16th question.
ट्राई करो। 16 का क्या आएगा आंसर? अच्छा 15 का डी आ रहा है आंसर, नन ऑफ दीज आ रहा है। ओके सेकंड केस भी कंसीडर करना पड़ेगा, बट 15 का आंसर ए ही दिया है बेटा। 15 का आंसर ए है। एक मिनट, जीरो टू इंफिनिटी एंड 5, 15 का यही दिया है, यही है। ओके नाउ 16th, 16 क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए वेवी कर्व मेथड यूज करो, इजी जाएगा। सिक्सटीन का सी, लेट्स सी। कोई स्टूडेंट लिख रहे हैं 16 का बी, few student they are writing B, few student they are writing C. सिक्सटीन एक्सप्लेन, ओके 16 मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सिक्सटीन का कोई कोई स्टूडेंट ए भी लिख रहे हैं। सो 16th क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ रहा है, लेट्स सी। See, y is given 4 minus x square. So what will be the y dash? Will be 2 into 4 minus, sorry, x square का square है। So इसका डेरिवेटिव something raised to 2 का 2 into something raised to 1 into again derivative of 4 minus x square is minus 2x. Okay, where it is minus or plus? Minus, okay. So I can write this as minus 4x. x के लिए मैं x plus 0 भी लिख सकता हूं। ओके देखो मैंने इसे मॉडिफाई किया, देखो ओके नेक्स्ट 4 minus x square I can write as 2 square minus x square. So my solution set will be minus 4x plus 0 है ना। Then here 2 plus x, और चलो अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, राइट। सो इट विल बी प्लस एंड हियर x plus 2 x minus 2। ओके y डैश। अब फंक्शन क्या दिया है? डिक्रीजिंग दिया है, f of x is decreasing means f dash of x क्या होगा? छोटा होगा 0 से, राइट। तो ये सॉल्यूशन सेट, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, क्रिटिकल फाइंड आउट करके वो नेगेटिव कब आंसर दे रहा है वो फाइंड आउट करो। देखो यहां तक समझ में आ गया? आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। y was 4 minus x स्क्वायर का 2 पावर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 4 का तो 0 आता था। सो माइनस 4x था, ओके ये माइनस 4x को कैन आई राइट एज माइनस 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 0। ओके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, और ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हटाने के लिए मुझे एक स्टेप अगर मुझे लिखना है तो 4 इंटू एक्स प्लस 0
है ना, ये माइनस का प्लस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अभी करेक्ट है। ओके, तो मेरे पास रूट्स इसके मिल गए x प्लस 0, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। सो मेरे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है, 0 है, प्लस 2 है, माइनस 2 है। तो मैं पहले क्रिटिकल पॉइंट यहां पर ड्रॉ करूंगा। ओके, अब ये देखो 2 से कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर रखते हो, अगर 3 रखते हो इक्वेशन में, अगर 3 रखते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव होगा, पूरे पॉजिटिव है, राइट। देन ओके एंड माइनस 2, चलो आपका, बट ये क्या है, आपका लेस देन 0 है, इसलिए आपका कर्व ऐसा आएगा, राइट। और निगेटिव के लिए आपके सॉल्यूशंस क्या होंगे, नेगेटिव के लिए ये एक होगा नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाले पॉजिटिव सॉल्यूशंस देंगे, ये एक होगा। सो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा यहाँ माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 0 टू 2। So your answer will be this, minus infinity to minus 2, sorry, 0 plus 2 और minus 2 था, so it was minus 2 union 0 to 2. So C was the answer. Okay, why not square, क्योंकि वो पर्टिकुलर नंबर इंक्लूड नहीं है ना उसके लिए। ओके okay? Now next, if you want to note down, you can note down this. अच्छा, इंटरवल्स के बारे में आपको बताना है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कब होता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। Sir, can you please send the group link, because Pune batch is not receiving class link on time. Also, we have not got the class PDFs. Okay, okay. So can you raise hand, the Pune student, Pune branch student? I want to see how many students from Pune they are attending. Okay. Okay. So you need PDF and formula sheet. Okay. Om Magar is there. Okay. Sir, एक group बनाए. Okay. Kalyan also not receiving PDF. Yesterday I have sent the PDF. I think yesterday's PDF Chembur bhi nahi. Okay, once again I will inform the coordinator to send PDF. All the PDF which I am showing you, each and every slide I have, and I will send in your group. And personally I will take look out where it is reaching to the student or not. So today I will sit with the coordinator and I will ensure that you will get all the things. And sir, you did not send all the trigonometric formulae. Okay, that also I will send. I have. Today you will get all the things. Okay. Next. So can you solve the next one, 17th? Solve 17th question.
Next, I think A298 he understood about the wavy curve method. Okay. Now next, देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर, at x is equals to 0 the function x is equals to 0 के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या फिर स्टेशनरी है, मींस कांस्टेंट है, या फिर मैक्सिमम तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, राइट. सो व्हाट इज द आंसर, कैन यू राइट. कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं सी. ओके, सी आंसर नहीं है, सी आंसर शायद से नहीं आएगा. डी आंसर भी नहीं आएगा. सर प्लीज मेक सेपरेट ग्रुप. ओके, बी आंसर देखते हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से एक बताता हूं. देखो ये फंक्शन दिया है, मेरे पास फंक्शन है f of x थर्ड रूट ऑफ 2x. अब थर्ड रूट ऑफ 2x ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या क्या है. देखो दिस आई कैन राइट एज 2x रेज टू 1 by 3. सो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, 1 by 3 2x रेज टू minus 2 by 3. So it will be 1 by 3 2x 3 और स्क्वायर. ओके, अब मुझे बताइए ये फंक्शन x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूं तो क्या जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा. सो इनफाइनाइट आ जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा. पॉजिटिव इनफिनिटी मींस इंक्रीजिंग फंक्शन. डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना. ओके सर, मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 2. ओके ओके, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि ये 2x का डेरिवेटिव 2 है ना. ठीक, ओके. अच्छा, मैक्सिमा कैसे नहीं है, ठीक है, मैक्सिमा कैसे नहीं है. मैक्सिमा के लिए आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखो मुझे बताइए, इसे 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू मिल जाएगी आपको. फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा कैसा है, किसे फाइंड आउट कर दीजिए, जो कि हम नेक्स्ट में देखने वाले. सपोज दैट ये क्यूब है, ये फंक्शन दिया है आपको, राइट. सपोज दैट ये फंक्शन दिया है, मैक्सिमा क्यों नहीं, एक स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ. स्टेशनरी क्यों नहीं वो भी बता. देखो f of x है 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 0. सो 9x स्क्वायर को मैं 3x स्क्वायर प्लस 16x को मैं 4 रूट x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट. इसे मैं f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करूंगा, f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे पॉसिबल वैल्यूज x के ये 1 2 या 3 वैल्यू मिल जाएंगे. x की वैल्यू सपोज दैट मेरी -3 और 2 मिल गई, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इसका. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 18x प्लस 16. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो रूट आए आपके वो लिखो. अगर आपका आंसर पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमा अटेंड करता है, अगर आपका आंसर निगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमा अटेंड करता है. ओके ओके okay, who is that, one boy, he's spammer, I think one spammer is there, so wait. Okay, I think now I have changed the setting. Now I did. Okay,
Okay. Yes. Yeah, I removed that word. See. Now, I was explaining at means how to find maxima and minimum of a function. That is the next part which we are going to discuss. देखो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन दिया होता है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी है. पहले क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आता है उसे जीरो से इक्वेट करो तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे. उसमें से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एवरी रूट रखो, एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा. जिस पे पॉजिटिव देगा वहां पर मिनिमा अटेंड करेगा, जहां पर नेगेटिव देगा वहां पर मैक्सिमा अटेंड करेगा. ओके, सो लेट्स सी दैट पॉइंट. और इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या, देखते हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा. देखो कोई भी अगर एक ग्राफ है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है, जब वो ऊपर जाके नीचे आता है मींस ही अटेंड एट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस. ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है या नीचे जाके ऊपर जा रहा है तो कोई तो एक पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट, जहां से वो जहां पे एक्स एक्सिस को पैरेलल या फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है. दैट इज क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट हमें ढूंढना है. मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यहाँ पर नेगेटिव है, राइट. सो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो और इसे जीरो से इक्वेट करते हो तो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, राइट. और दूसरा भी जहां पर फिर से जीरो आ रहा है मीन्स ये पॉइंट. सो यहाँ पर दोनों पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव जीरो है मीन्स हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट. तो इसमें से मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे है और मिनिमा कौन से पॉइंट पे है, ये कैसा डिसाइड करते हैं. देखो, अ फंक्शन x हैज अ मैक्सिमम पॉइंट x इज इक्वल टू सी इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव है तो मैक्सिमा अटेंड करता है. उल्टा होता है, लेस देन अगर होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देन it attains maxima. और सेकेंड ऑर्डर similarly a function f of x has a minimum at x is equals to c if f dash of x is equals to zero means critical point तो होना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन अगर जीरो है तो वहां पर वो मिनिमा अटेंड करता है. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाती है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैसी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है. देखो ये यहाँ पर बताया नहीं था. देखो तो हमें तो एक पॉइंट मिल जाएगा, सपोज दैट इसके सॉल्यूशन से 3 और -2 आता था और 3 पे मैक्सिमम मिलता था, -2 पे मिनिमा मिलता था, राइट. तो एफ डबल डैश ऑफ 3 नेगेटिव आ रहा था, एफ डबल डैश ऑफ -2 पॉजिटिव आ रहा था. तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो ओरिजिनल फंक्शन दिया था, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स था तुम्हारा 3x⁻³ + 9x - 7. तो जहां पर फंक्शन मैक्सिमा अटेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट को डालो. सपोज दैट ये 3 पे मैक्सिमा अटेंड कर रहा है तो ओरिजिनल फंक्शन में 3 की वैल्यू डाल दो x की जगह. सो व्हाट एवर नंबर यू आर गेटिंग, सपोज दैट 98, दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एंड मिनिमम वैल्यू जहां पर मिनिमा, जिस पॉइंट पे मिनिमा फंक्शन अटेंड कर रहा है वो वैल्यू x की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में डालो. सो व्हाट एवर यू आर गेटिंग, सपोज दैट -33, दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू. ओके, ठीक है. स्टेशनरी फंक्शन क्या है, ओके बता दो. स्टेशनरी फंक्शंस के बारे में पूछो. फर्स्ट यू ट्राई दिस. Solve first and second.
So student, they are writing 18th and 19th answer. Few student, they are writing A, D. So 18th answer D, 19th A. Okay. देखो 18th वाला, अ फंक्शन, ये फंक्शन है, हैज मिनिमम वैल्यू। मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 2x माइनस 3। एफ डैश ऑफ एक्स को अगर 0 से इक्वेट करते हो तो आपको x क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 3/2। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, अगर दो दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के वो सॉल्व करना है। बट यहाँ पर एक मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर ही वो क्या हो रहा है, मीन्स फंक्शन ऐसा हो रहा है, राइट। मीन्स एक ही पॉइंट मिल रहा है जहां पर वो स्लोप वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, मीन्स डेरिवेटिव 0 हो रहा है। सो इट इज मिनिमम पॉइंट, सो इट इज 3/2। बट सेकेंड में देखो, सेकेंड में अलग आएगा। चलो 19th, minimum value of this function. There are two methods. I am solving by using second order derivative. दूसरी भी मेथड से अगर आपको इजी आता है, you can use that method also. So function दिया है 4x cube minus 12x square minus 36x, right? तो फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो डायरेक्ट पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 12 अगर कॉमन, सॉरी 4 कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। चलो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, f dash of x is equals to 12x minus 24 minus 36, डेरिवेटिव निकालो। अब इसे 0 से इक्वेट करो, 12 कॉमन निकाल के x minus 2x, 24x है ये, so x minus 2x 12x square, okay, so x square minus 2x minus 3, माइनस 3 के फैक्टर माइनस 2 के लिए x minus 2 and x plus 1. So what are the solutions? x is equals to 2 और x is equals to -1. तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए आपके, राइट। x is equals to 2 and x is equals to -1, दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। मींस कहां पर तो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, कहां पर तो मिनिमा अटेंड कर रहा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है उसी का फिर से एक बार डेरिवेटिव ले लो। सो f डबल डैश ऑफ x, it will be first as it is derivative of second, ये simplified लोगे तो भी चलेगा, है ना। So it will be 2x minus 2, right? 2x minus 2. Now f double dash of 2, so it will be 4 minus 2, that is 2. So you are getting positive answer. And f double dash of -1, if you put second value, then you will get 2 into -1 -2, so it will be -2 -2, so you are getting negative answer, -4. Okay, so for which point the function attains maximum and which point function attains minima, can you write in the chat box? Roots are 3 and -1. Yes, here roots are 3 and -1. Okay, -3 and +1. Yeah,
roots are -3 and +1, so 3 and -1. So if we'll put x is equals to 3, so it will be 3 to the 6 minus 2, that will be 4, again positive, and -1, so it is minus. Okay, right. So maxima at -1 and minima at 3, right? Maxima at -1, negative answer, it is giving negative answer. So maxima at -1 and minima at 3. तो हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है. So it attains maxima at -1. So I have to put -1 in the original function. So I will get 4 into -1 raised to 3 minus 12 into -1 raised to 2 minus 36 into -1. So it will be -4 minus 12 plus 36. Okay. -4. Okay. Then 12 into x square. So plus, minus, and is just plus. But the answer is given -108. अच्छा, मिनिमम पूछा है. So if it was maxima, then you can write this, and minima के लिए आपको 3 पुट करना है. So if you will put minimum value, then you will get the answer -108. मैंने मैक्सिमा के लिए सॉल्व किया था. अगर मैक्सिमा पूछा होगा तो ये आंसर आएगा, मिनिमा पूछा होगा तो 3 वैल्यू पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो. ओके, सो द आंसर इज -108. Next, next point is Lagrange's mean value theorem. If you want to take screenshot, you can take screenshot. Okay, बाहर गए. Next, if you want to take screenshot, you can take screenshot.
Look here, LMVT and Rolle's theorem. Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? देखो, पहला ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे इसका. If A and B are 2 points on a continuous smooth curve, continuous और differentiable है, इस कर्व पे A and B ये 2 पॉइंट है, तो मुझे बताइए ए बी ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, राइट? तो कॉर्ड ए बी के लिए उसी कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कोई ना कोई, तो जिसका टेंजेंट उस कॉर्ड को क्या होगा? पैरेलल होगा, राइट? So A and B are the 2 points on the continuous and smooth curve. Then there exists at least one point C on the arc AB of the curve, the tangent at which parallel to the chord AB. उसे फॉर्मूला में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो if a function is continuous in this closed interval AB and differentiable in this AB open interval, then there exists at least one point C belongs to AB, means A और B इस आर्क पे एक कोई ना कोई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसमें f of B minus f of A upon B minus A, f of B minus f of A upon B minus A ये होगा f dash of C. ओके, अंडरस्टूड? जब क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको. नेक्स्ट, रोलिस थ्योरम क्या है? रोलिस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी ग्राफ पे सपोज कोई भी एक फंक्शन है और दो पॉइंट, सपोज दैट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे सेम है, ए और बी पे एफ ऑफ एक्स अगर सेम है, अदरवाइज आई विल ड्रॉ दिस अनदर ग्राफ. ओके, चलो यहां पर एक ए पॉइंट है, यहां पर एक बी पॉइंट है. ए के लिए वैल्यू दे रहा है 4 और बी के लिए भी वैल्यू है 4. सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अगर अटेंड कर रहा है, मीन्स ए की वैल्यू अगर अटेंड कर रही है, दो डिफरेंट पॉइंट है, इसका मतलब एक कोई ना कोई तो ए और बी के बीच में पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा. सो सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, डायरेक्टली सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी where f dash of c is equals to 0. Okay, so f of a f of b सेम है, तो कोई ना कोई पॉइंट c है जहां पर आपका f dash of c कितना है? 0 है. सपोज दैट ये 7 है और ये 9 है, तो 7 और 9 के बीच में कोई ना कोई तो एक ऐसी वैल्यू है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है. ओके, सो दिस इज रोलिस थ्योरम. So now we will take questions based upon this. If function on this interval, if f of x is equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3 on closed interval 0, 4, then the value of c by mean value theorem is कौन सी आएगी? देखो, so यहाँ पर you have to use mean value theorem, LMVT.
हो गया 18th. So can you solve 20, 21 and 22? 20 का आंसर फाइंड आउट करो. देखो हमें फंक्शन दिया है ये, राइट? इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप. इंटरवल दिया है 0 to 4. देन द वैल्यू ऑफ सी क्या है? मीन्स ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये कॉर्ड को पैरेलल है, कॉर्ड को पैरेलल है, राइट? एलएमवीटी के लिए. सो वी नो दैट f of b minus f of a अपॉन b minus a. सो ये आपका a है और ये b है, राइट? सो f of b मीन्स फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4. सो पहले f of a और f of b यहां पर निकालो. f of a आएगा आपका f of 0 0 ही है ना? हाँ. सो इट विल बी all 0. So 0 minus 1. So 0 minus 1, 0 minus 2 and 0 minus 3. So it will be what? Minus 6. Minus 6 are right? 3 times, you know. And f of b means f of 4. 4 के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है? 4 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 3. So it will be 3 into 2 into 1. So 6. So 6 minus minus 6 upon b क्या है? 4 minus 0. So it will be 12 by 4. That is 3. Okay. So ये क्या होता है? f dash of x होता है ना, f dash of c होता है. अभी मुझे f of c निकालना है. So ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर f dash of c 3 आ रहा है, बट f of c वहां पर c सब्स्टिट्यूट कर दो, फंक्शन मिल जाएगा. f dash of x आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11. देखो x तो दिया है आपको, इसका अगर आप सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11. मैंने डायरेक्ट किया, आप इसे सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशन मिलेगा उसका डेरिवेटिव ले लो, ये आ जाएगा. तो f dash of c is in place of x I have substitute the value c. So 3c square minus 12c plus 11. So f dash of c already आपने निकाला है 3 है. So 3 से इक्वेट कर दो, you will get quadratic equation in c जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी c की 2 प्लस और माइनस 2 by root 3. ओके. वहां पर आपको फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा. एग्जाम में आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए जाएंगे जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मैक्सिमम. अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो टेस्ट करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जनरली पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते ही है और आपके टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम पॉलिनोमियल ही फंक्शन है. राइट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व 21 एंड 22. 21 सॉल्व करो.
सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? ओके, ठीक है, फिर से एक बार मुझे क्वेश्चन बताना है। देखो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, राइट? हमें मीन वैल्यू थ्योरम से सी आइडेंटिफाई करना है। सी आइडेंटिफाई करना है मीन्स ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि कॉर्ड ए बी को पैरेलल है। ये कैसा डिसाइड होता है? देखो, लिग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है एफ डैश ऑफ सी। मीन सी का डेरिवेटिव ऐसा होता है, जो भी हमें रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका डेरिवेटिव वो नंबर आता है, एफ डैश ऑफ सी वो नंबर आता है जिसमें फंक्शन में अपर लिमिट माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी क्या है? एफ ऑफ 4। तो फंक्शन में एक्स की जगह 4 डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा 6, जो कि मैंने एफ ऑफ बी डाला। फंक्शन में एफ ऑफ ए है, ए क्या है आपका 0, तो फंक्शन में ए का वैल्यू 0 डाल दो, आंसर मिल जाएगा। देखो 0 -1 -1 0 -2 -2 0 -3 -3, सो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट -6। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? अब एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू आ जाएगा 12/4 दैट इज 3। सो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू 3 आएगा। अब फिर से देखो, फंक्शन ओरिजिनल मीन्स ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, x की जगह c सब्स्टिट्यूट करो, तो उसे उसका वैल्यू 3 आ रहा है। मीन्स एफ डैश ऑफ x, ये एफ डैश ऑफ x मैंने डायरेक्ट ले लिया, आप सिंप्लीफाई करो, x इसे एक्सपांड कर दो पहले, बाद में इसे एक्सपांड कर दो, एक बड़ा सा आंसर आएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो या फिर इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो, वो भी चलेगा। सो एफ डैश ऑफ x आएगा 3x² - 12x + 11, मीन्स ये x की जगह c है, तो एफ डैश ऑफ c ये आएगा। एफ डैश ऑफ c ऑलरेडी 3 है, तो 3 से इक्वेट कर दो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए -b प्लस और माइनस है ना, b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूले से यूज करो तो ये आंसर मिल जाएगा। अभी समझ में आ गया? क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट। ये सॉल्व करो। If the function f of x is equals to x³ - 6x² + ax + b defined on this interval satisfies Rolle's theorem for this c, then the value of a and b। अभी हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? ये ओके, ठीक है। 21 और 22 दोनों भी सॉल्व करो। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है ये रिड्यूस सिलेबस है क्या? नहीं है बेटा, एक मिनट, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया था ना। ओके, रोलीज एंड एलएमवीटीबी, ओके ठीक है। तो जेई मेंस के लिए भी काम आएंगे आपको। देखो, अप्रोक्सीमेशन हटा दिया था, थ्योरम का प्रूफ नहीं आया था, बट देखते रिड्यूस सिलेबस देखता हूं मैं।
22 का आंसर, 21 का आंसर आएगा -2 एंड 22 का भी आंसर ए है, बराबर है। ओएपीजेसी अंधेरी 2013-55, नाम क्या है तेरा? 35 नाम क्या है? ओएपीजेसी का स्टूडेंट है, अंधेरी का नाम क्या है बेटा? आर्यन शेट्टी। बैच कौन सा? मेरे ही बैच में था। ओएपीजीसी का बैच कौन सा था? ओके गुड। देखो, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे 2-3 मेथड है। देखो बाय डिफॉल्ट तो आप कौन से पॉइंट नहीं आएंगे, -3 से 0 में कौन सा पॉइंट नहीं आएगा? एक तो ये पॉइंट नहीं आएगा, बाद में -3 और 0 में 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा ना, तो बचा वाला कौन सा? यही तो है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सी पॉइंट इन इंटरवल के बीच में लाई होना चाहिए ना, तो इन दोनों इंटरवल के बीच में कौन सा लाई कर रहा है? यही तो अकेला लाई कर रहा है। ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड, अभी एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, ये रेगुलर मेथड होगी आपकी। इसका डेरिवेटिव निकालो, सपोज दैट 4x² प्लस 3x आएगा। चलो लेट्स इसे 0 से इक्वेट कर दो, है ना, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो रहेगा आपका 2। अंडरस्टूड? सो इसका डेरिवेटिव निकालो, उसे 0 से इक्वेट कर दो, और जो भी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर c, दैट विल बी -2। अंडरस्टूड? चलो लास्ट वाला सॉल्व करो। 22। क्वेश्चन प्रॉपर लिखूं मैं? देखो फंक्शन फिर से मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ, फंक्शन आपको प्रॉपर भी नहीं दिख रहा है तो एफ ऑफ एक्स है x³ -6x² प्लस ax प्लस b। ओके, 2 मिनट हो गए, 1 मिनट।
था, हाँ मुझे आप बता दीजिएगा। यस मैम डेफिनेटली यस मैम डेफिनेटली। हाँ look here actually one phone was there. See now if the function this defined in this interval satisfy the Rolle's theorem, then what will be the value of a and b? This is very easy. See देखो यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट? रोलिस थ्योरम क्या कहता है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एंड पॉइंट के लिए सेम है. सो इफ विल इक्वेट एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 is equals to 1 cube minus 6 into 1 square plus a into 1 plus b. So it will be 1 minus 6 plus a plus b. Okay. Or f of b. So f of 3. So इससे इक्वेशन मिल जाएगा आपका 3 cube minus 6 into 3 square plus a into 6 plus b. So it will be 9 minus 54 plus 6a plus b. So 6a plus b समथिंग आएगा. इसे आप इक्वेट करते हो तो a और b में रिलेशन बन जाएगा, राइट? Then and c is given derivative. So a और b रिलेट करो तो a का वैल्यू आ जाएगा 11 and b belongs to real number. Okay. 3a plus b. Okay. 3a plus b. इधर 3a plus b बोल रहा है तो अच्छा इसका 3a plus b आएगा. अच्छा ये 3. ओके 3a plus b. राइट जो भी है. ओके सो 3a plus b 27 चलेगा. चलो 3a plus b आ जाएगा 27. ये एक इक्वेशन बन जाएगा, राइट? और इसे फाइंड आउट करो a और b की वैल्यूज. नेक्स्ट सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोरिंग टॉपिक है. मैक्सिमम स्टूडेंट अटेंड कीजिए क्योंकि ये आप प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी आपने सीखा है जेईई मेंस में, राइट? वो बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. चाहे तो मैं 1.5 घंटे में दोनों भी टॉपिक कवर करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में दोनों टॉपिक हो जाएंगे. बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है. सीईटी में ऐसे कुछ कुछ बोनस मार्क होते हैं, उसमें से बोनस टॉपिक है ये. ओके अच्छा आज के भी पीवाईक्यू okay okay so I will send PDF of this also. Past year. Okay past year question. हाँ nice question. One student he was asking me sir past year question PYQ आज के. देख बेटा मेरे पास जो बुक था ना मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, बट ये पब्लिश हुआ था इसमें ये बुक में ईयर मेंशन नहीं किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. बट मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सभी के सभी टाइप को मैं टच करता हूँ, कॉन्सेप्ट भी हो और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैक्सिमम पूछा जाता हूँ. एक्चुअली इस बुक में 2008 टू 2011 दिए हैं. जो भी है 2008 टू 2011 दिए थे, बट 2011 से 21 तक जो 10 ईयर है उसमें जो है वही है. ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, बट ईयर फिक्स मेंशन नहीं था इसलिए मैंने फिक्स ईयर मेंशन नहीं किया है. ओके ठीक है. सर कैन यू प्लीज क्रिएट अ न्यू ग्रुप बिकॉज वी डू नॉट गेट PYQs. ओके पुणे बैच. ओके पुणे बैच के जो भी कोऑर्डिनेटर है उनको बता देता हूँ कि ये PDF
सेंड करने के लिए। तो मेरे पास जितने भी, एक काम करो ना, मैं इधर ग्रुप में सेंड करूँ क्या पीडीएफ मेरे पेन ड्राइव में, रुको आप इधर से भी सही ले सकते हो, देखते हैं। जूम मीटिंग इधर है ना ऑन, ओके जूम मीटिंग उधर है, वेट आई विल ट्राई टू सेंड इन योर ग्रुप। बेटा मेरे पास है पेन ड्राइव इधर अटैच है, बट पेन ड्राइव इधर अटैच किया है, ओके लेट इट बी। मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली पेन ड्राइव इधर से मुझे उधर लगाना पड़ेगा और फिर आपके ग्रुप में डालना पड़ेगा। सो बेटर है मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, पीडीएफ नेक्स्ट लेक्चर में बराबर दे दूंगा, ओके ठीक है। सर कैन वी मेक वन मोर कॉमन ग्रुप, ओके मैं जो कोऑर्डिनेटर है उनसे डिस्कस करके, अगर आपको एक ग्रुप बनाने है सीडी का तो वो भी मैं उनसे डिस्कस करके बनाता हूँ, ओके और कुछ डाउट? देखो अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जितना भी टाइम है, टाइम लिमिट बहुत कम है, मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम टाइम में सभी के सभी कॉन्सेप्ट हो जाए और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही है। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर अटेंड करोगे और देखोगे कि मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए उसमें से उसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चन आपको सीईटी में मिलेंगे, ओके सो इतने जो 10-12 साल के जो पेपर्स है उसका कलेक्शन निकाल के कौन से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है वो भी मैं ट्राई करता हूँ आपके पास पहुंच जाए। बुक मार्वल है, अच्छा है, आप ले लो, ओके एनी डाउट? सो आई होप, ओके सर प्लीज शेयर योर फोन नंबर। फोन नंबर मैं देखता हूँ कोऑर्डिनेटर से पूछ के, अगर शेयर करना है तो मैं पक्का शेयर कर दूंगा, ओके सो थैंक यू एंड बी देयर फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके बुक का पीडीएफ भेजो, ओके नाइस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था, मैं वही बोलने वाला था कि मार्वल का बुक बहुत से स्टूडेंट है जो कि अभी 1 महीने के लिए क्यों मार्वल का बुक ऐसे लेना ये सोच रहे होंगे, तो बुक की पीडीएफ अगर किसी किधर है ऑनलाइन तो मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर या पूरे जैसे चैप्टर हो जाता है मैं पूरे जो क्वेश्चन है वो डाल दूंगा, ओके सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड tangent parallel to line draw between A and B? Okay, what is the reason behind tangent parallel line to draw between A and B? Okay, A और B के बीच में tangent line draw करने का रीजन क्या है? देखो tangent से हमें क्या पता चलता है? स्लोप पता चलता है। एक मिनट, अच्छा कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप पता चलता है, उसका डेरिवेटिव पता चलता है, राइट? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर क्रॉस है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो डेरिवेटिव 0 है, मींस पैरेलल है वो। सो टेंजेंट, यस सर पीडी एंड बीडी थोड़ा डिटेल में जाना, ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्लो में जाऊंगा, ओके एक मिनट, एक मिनट। देखो एक स्टूडेंट बोल रहा था स्टेशनरी फंक्शन का, एक्चुअली स्टेशनरी पॉइंट नहीं, स्टेशनरी फंक्शन नहीं होता, स्टेशनरी पॉइंट होता है, ओके फंक्शन पे। तो
ये पॉइंट तो मूव कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, राइट? तो स्टेशनरी पॉइंट ये है जहां पर वो स्टॉप होता है, मींस डेरिवेटिव जहां पर जीरो है वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आपने पूछा था, एक स्टूडेंट पूछ रहा था स्टेशनरी पॉइंट का क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, इसके लिए ना, एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए स्टेशनरी पॉइंट कोई तो स्टूडेंट एक पूछ रहा था। स्टेशनरी की जगह आप डेरिवेटिव कांस्टेंट भी कर सकते हो, कांस्टेंट। ओके, चलो, आई थिंक समझ में आ गया। यस, बीडी और पीडी के मैं मैक्सिमम पीवाईक्यू करवाऊंगा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाऊंगा बीडी और पीडी के भी, और ट्राई करूंगा कि सभी टॉपिक्स के जो पीवाईक्यू है वो भी मैं कलेक्ट करके अगर आप तक पहुंचाया जाए तो भी अच्छा रहेगा। कोई दूसरा पब्लिशर या फिर नेट से अगर मिलते हैं, या फिर सीईटी सेल, क्योंकि इधर मुंबई में भी है बहुत से बच्चे पुणे से, तो मैं इधर अगर सीईटी सेल है तो उधर से जाके पूरे जो क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जो भी पूछे गए हैं वो मैं सेंड करने का ट्राई करूंगा। ओके, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। ओके, सो थैंक यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।